Today for class 6, it is the revision class for some students. Since this worksheet has been completed already, on request of some students, I am going to complete this worksheet again. Page 13, worksheet 4. Here, there are some problems which we will have answer, which its reason. Question number 1. 0 into 489 is equal to how much? Answer is 0. Reason. Any number multiplied by 0, रिजल्ट इज 0. जब किसी नंबर में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट उसका 0 ही होगा. यहाँ नंबर 489, when multiplied by 0, result is 0. Question second, 1b. 1 into 741. 1 into 741 is equal to how much? Answer is 741. It is identity rule of multiplication. Any number multiplied by 1, the result is the number itself. The result is the number itself. जब किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वो नंबर होता है. जैसे यहाँ 741 में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 741 ही होगा. किसी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 नंबर होगा. ये सी, इट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. A into B is equal to B into A. A into B is equal to B into A. 27 into 635 is equal to 635 into how much? A into B is equal to B into A. The answer is 27. 27 into 635 is equal to 635 into 27. It is called commutative law of multiplication. Now, question is D. Here. It is associative law of multiplication. Associative law of multiplication. 242 into 197 into, in bracket, into 581 is equal to 242 into, in bracket, 197 into how much? Answer is 581. Why? It is called associative law of multiplication. A into B into C is equal to A into B into C. A for 242, B for 197, C for 581. A into B into C is equal to A into B into C. Next, E. Already just as B. 479 into 1 is equal to 479. 479 into how much? Is equal to 479. किसी नंबर में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट वो नंबर ही होगा, तो दैट इज आंसर इज 1. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ. F, that is A. How much multiplied by 831 is equal to 0? Any number multiplied by 0 is equal to 0. The result is 0. 831 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए कि रिजल्ट 0 होगा, तो 0 से. 831 में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा. G, same. Any number multiplied by 0, result is 0.
162 into 0 into 1025. Here 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रियल 0 होगा। यह था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, इट इज वर्ड्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम है। फिर से जो आज आए हैं क्लास में वो ध्यान से देखें। जिसका आज दूसरा क्लास है ये, वो देखें कि हमने कैसे बनाया है। उस क्लास में मैंने हर एक प्रॉब्लम को नहीं बनाया था, केवल रूल आपको समझाए थे। इसमें देख रहे हैं बना करके रीजन बतला रहे हैं आपको, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कहता है रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो कहता है इन मोर टेक मल्टीप्लिकेशन, अधिक के लिए मल्टीप्लिकेशन लो। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, इन लेस टेक डिवीजन। तो वो आगे वर्कशीट में इन मोर टेक मल्टीप्लिकेशन, ये रूल है इस मल्टीप्लिकेशन का। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इट स्टेट्स दैट इफ द कॉस्ट ऑफ वन बर्गर इज ₹39.80, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 सच बर्गर्स। एक बर्गर की कीमत ₹39.80 है, तो 25 ऐसे बर्गर की कीमत क्या होगी। तो सिंस cost of one burger is 39.80, it is given cost of one burger, that is equal to ₹39.80. Therefore cost of 25 such burgers, one say more 25, one say more 25, in more take multiplication. So we will multiply 25 to 39.80. The cost of 25 such burgers, that is equal to ₹39.80 into 25, and it is equal to ₹995.00. The answer should in words. वर्ड्स प्रॉब्लम में आंसर हम वर्ड्स में ही डालेंगे। Therefore cost of 25 burgers, that is equal to ₹995. Now question number 3. In a library there are 27 bookshelves. If there are 479 books on each bookshelf, find total number of books. कहता है एक लाइब्रेरी में 27 बुक शेल्फ्स हैं, जिस पर बुक रखा हुआ है बुक शेल्फ 27 है, और एक बुक शेल्फ पर 479 बुक्स हैं, तो टोटल कितने बुक हैं, यह है क्वेश्चन। अब देखिए कैसे बना रहे हैं इसको। तो नंबर ऑफ बुक्स ऑन वन बुक शेल्फ, एक बुक शेल्फ पर कितने बुक हैं, तो दैट इज 479. Number of books on one bookshelf is equal to 479. Therefore, number of books on 27 bookshelves, one से more 27. जब ये more तो टेक मल्टीप्लीकेशन, 27 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। The number of books on 27 bookshelves, that is equal to 479 into 27. इन मोर टेक मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 12,933. तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट इज इक्वल टू 12,933. इतने बुक्स हैं लाइब्रेरी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ए स्टोर हैज 432 dresses for girls. If the cost of each dress is ₹583.50, find the cost of all dresses. कहता है एक स्टोर में 432 ड्रेसेस हैं गर्ल्स के लिए, और एक ड्रेस की कीमत ₹583.50 है। तो कुल
कीमत क्या होगी हर एक ड्रेस की। तो अब देखिए कैसे बनाते हैं। सिंस क्या, सिंस कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस, कॉस्ट ऑफ वन ड्रेस दैट इज इक्वल टू ₹583.50। एक ड्रेस की कीमत इतनी है, तो कितने ड्रेस हैं वो स्टोर में, तो 432। तो कॉस्ट ऑफ 432 ड्रेसेस, वन से मोर 432, इन मोर टेक मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 432 ड्रेसेस दैट इज इक्वल टू ₹583.50 इंटू 432। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 2,51,972। Hence, cost of 432 dresses, cost of 432 dresses is equal to ₹2,51,972. आंसर शुड इन वर्ड्स। वर्ड्स प्रॉब्लम में हमेशा आंसर वर्ड्स में डालिए। तो इस तरह मैंने आपको हर एक प्रॉब्लम बना करके दिखलाया वर्कशीट 4 का, वर्कशीट 4 का हर एक प्रॉब्लम दिखलाया। अब अगर आपके समझ में आ गया तो आप भी इस वर्कशीट 4 का प्रैक्टिस इसी तरह कीजिए जैसे हमने बनाया है। इट इज योर HW, डू प्रैक्टिस ऑफ वर्कशीट 4, डू प्रैक्टिस ऑफ वर्कशीट 4। थैंक यू। और कल के क्लास में हम वर्कशीट 5 को सॉल्व करके बताएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।